So, hello students. Now, happy Diwali. I think you celebrate joyfully. Okay. Now today, after Diwali, just first class. This one. Today we discuss preparation of alkyl halide. Before this, we also discuss about the alkyl halide from alkane. Now the second point, that is from alkenes. So last class we discussed the preparation of alkyl halide from alkane. Now today we again start from this point, that is from alkenes. So alkyl halide from alkenes, you see, so basically it reacts with or you can say that by the action with halogen acid. So what is halogen acid? That is either HCl, HBr or HI. So you see here, so this one, suppose alkene, this one, that is alkene. So when it reacts with halogen acid, that is suppose HX, so what it produce? So it produces like this, that is H, here also X. Okay, or you can say that this one, this reacts with this is the general formula, like this. So this is what? This is, yes, alkyl halide. Okay, 2 carbon, that is ethane. So this becomes CH3Cl, C2H5, sorry, this one comes C2H5Cl, ethyl chloride. So ethyl chloride. Is it clear? Understood? Both are same. So we draw like this. This is the, both are same. So now the reactivity order, in this case, the reactivity order, what? Halogen acid. The halogen acid reactivity of order with this halogen acid is, that is HCl greater than HBr greater than HI. It means that with alkene or ethene, HI, the order of reactivity is this one, maximum. Okay. Why? The question is that why? What's the reason? So reason is the bond dissociation enthalpy. So in HI, the bond dissociation enthalpy, okay, so this HI, the bond dissociation enthalpy is less, means less amount of energy required here. So if we see the bond enthalpy, it means that HI is the least bond enthalpy, then HBr, and then HCl. Okay, so bond enthalpy, if you see here, that is 300 kilojoule per mole, and this one 365 kilojoule per mole, and this one 430 kilojoule per mole. So if we see this one, the least bond dissociation enthalpy, this one, this HI. So for this reason, due to the least bond enthalpy, the reactivity order, the HI reacts fast. So reactivity order in this case is maximum. Is it clear? Understood? So basically, when from alkenes, when ethene, or maybe alkene means ethene, propene, butene, whatever, so that when they reacts with this halogen acid, either HCl, HBr or HI, so with the HI, the reactivity
is fast. So reaction is fast in case of HI due to the low bond dissociation enthalpy. So the reaction is like this. Now it's clear? Any doubt? No, no? Okay. Now rub it. Understood? Now see it. So due to this low bond dissociation enthalpy, HI reacts faster as compared to HBr or HCl. So now the question arises, actually what type of reaction is there? That is addition reaction. This one is actually the reaction is addition. So if you see this reaction with halogen acid, it follow the addition. Now question arises, then what type of addition reaction? So it is a kind of electrophilic addition. So it's a addition reaction, that is electrophilic addition. In this case, means when this alkene reacts with halogen acid, it follow the electrophilic addition reaction. Is it clear? Okay. So in this case what? That is in case of symmetrical, that is addition of symmetrical alkenes. You can say that addition of symmetrical alkenes. So symmetrical alkenes. Now question is, what is symmetrical alkenes? Symmetrical alkene means the number of carbon on both sides of double bond are equal. Suppose I write like this, CH2 double bond CH2. This is symmetrical. Okay. Now suppose I write like this, CH3 CH double bond CH CH3. This is also symmetric. So in this case, symmetrical alkenes, so when symmetrical alkene reacts with halogen acid, then it follow the addition. What type of addition reaction? That is electrophilic addition reaction it follows. So you see here, suppose I write here HCl. So it follow the electrophilic substitution reaction. Electrophilic addition reaction. It's not a substitution, it's a electrophilic addition reaction. Electrophiles are there actually. So this one slightly positive charge, this one negative charge. Okay. So this acts as an electrophile. Since we know that electrophiles are what? Electropositive in electropositive species, and nucleophiles are electronegative. Okay. So this you see here, attack on this, and what it produce? It produce CH3 CH2 plus at first. So it becomes, that is, it is called ethyl carbocation. Ethyl carbocation. This becomes, and here Cl minus, this one. So clear? Understood? It's a mechanism. What type, how the reaction follows it, through what mechanism, just you can see through this. At first I rub this one. So this ethyl carbocation. So this reaction is slow reaction. It's a slow reaction. So when this addition reaction, how it follow, how it complete the addition reaction. So the first step is this one. So through this, at first it form ethyl carbocation. Now this ethyl carbocation, this ethyl, that is CH3 CH2, this is ethyl carbocation, further reacts or combines with this Cl minus. This becomes fast reaction, and it form CH3 CH2 Cl. So in this way
it produce ethyl chloride, that is alkyl halide. So alkyl halide. So in one step if we see here, that's why in one step we write like this, CH2 double bond CH2 plus HCl, and it produce CH3 CH2 Cl. This is one step reaction, but the mechanism is this one. So through this we can understood these two steps. Through these two steps the reaction follows. ठीक है, समझ में आया? सो एक्चुअली कोई भी रिएक्शन हमारा जो होता है उसके अंदर मैकेनिज्म होता है कि किस मैकेनिज्म से वो रिएक्शन को फॉलो कर रहा है. तो यहाँ पे पहले क्या होता है, स्लो रिएक्शन होता है. ठीक है, स्लो रिएक्शन होगा हैलोजन एसिड के साथ. तो स्लो रिएक्शन जब होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है एक्चुअली. इलेक्ट्रोफाइल, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है ना. तो ये अटैक कर रहा है इस डबल बॉन्ड पे, ये डबल बॉन्ड है. तो ये हमारा ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन इसमें क्या हुआ, ऐड हुआ. हाइड्रोजन इसमें, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है. ऐड होके ये क्या बन गया, CH3 डबल बॉन्ड हट गया, CH2. तो ये अब हो गया इथाइल कार्बोकेटाइन, क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हुआ प्लस चार्ज हो जाएगा. तो ये इथाइल कार्बोकेटाइन बन गया और Cl माइनस यहाँ पर आ गया. यही इथाइल कार्बोकेटाइन, ये जो रिएक्शन हुआ स्लो होगा, और यही इथाइल कार्बोकेटाइन सेकेंड स्टेप में क्लोरीन Cl क्लोराइड माइनस के साथ फिर रिएक्ट करेगा, कंबाइन करेगा या ऐड करेगा. तो ये फास्ट होगा और इस तरह से ये इसमें जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है. तो दैट्स वाई, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन. और ये सिमेट्रिकल एल्कीन में, एल्कीन्स में होता है. और इस तरह से इथाइल क्लोराइड हो गया. आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं. ये सिर्फ इथिन में नहीं, आप प्रोपीन में भी हो सकता है यही पैटर्न पे. इसी तरह आप देख सकते हो, अगर हम इसको इस जगह में, अगर हम इथिन नहीं लेके प्रोपीन लेते हैं, मान के चलिए, ठीक है, ये सिमेट्रिकल है, नॉट प्रोपीन. सिमेट्रिकल है तो क्या होगा, दोनों तरफ हमको इक्वल लेना होगा. मान लीजिए हम ले रहे हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, तभी तो सिमेट्रिकल होगा. सिमेट्रिकल मीन्स यहाँ 2 कार्बन और डबल बॉन्ड के इधर भी 2 कार्बन, दैट इज सिमेट्रिकल. ये सिमेट्रिकल हुआ. ठीक है, अब मान लीजिए इसी पैटर्न पे देखिए रिएक्शन हो सकता है. जैसे मान लीजिए इस बार HBr ले रहे हैं, HBr, यहाँ भी वही रिएक्शन इसी तरह से फॉलो होगा HBr के साथ. ठीक है, तो यहाँ भी इस तरह से आप करेंगे तो यहाँ भी सेम आएगा, उसी तरह का प्रोडक्ट होगा. जैसे प्रोडक्ट क्या होगा, जैसे CH3 CH, आप यहाँ Br जोड़ दीजिए, फिर यहाँ पे CH2 और CH3, सेम पैटर्न पे. ठीक है ना, समझ में आ गया. ओके, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये पैटर्न एक ही है, इसी पैटर्न पे ये सिमेट्रिकल है. तो हम यहाँ इथिन दिए, यहाँ प्रोपीन नहीं, हमारा प्रोपीन नहीं होगा क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, दोनों साइड इक्वल होना चाहिए. अगर आप प्रोपीन देते हैं तो क्या होगा, अनसिमेट्रिकल हो सकता है, क्योंकि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 देते हैं तो ये प्रोपीन हो गया. ये हमारा इधर 2 कार्बन, इधर 1 कार्बन. तो यहाँ हम इसका बात नहीं कर रहे हैं, अनसिमेट्रिकल का बात नहीं कर रहे हैं हम. यहाँ पे सिमेट्रिकल एल्कीन, एडिशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन का बात कर रहे हैं. तो सिमेट्रिकल एल्कीन नंबर ऑफ कार्बन दोनों साइड, डबल बॉन्ड के दोनों साइड इक्वल होगा. ठीक है, ये तो अब क्लियर हो गया. एनी डाउट, नो ना. तो दिस वन, द प्रोडक्ट इज दिस अल्काइल हैलाइड. सो इफ यू नेम इट, यू नो दैट इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन. इफ यू नेम दिस वन, अगर इसका नाम हम लोग देखते हैं तो यहाँ से हमको स्टार्ट करना होगा 1 2 3 4, दैट इज 2 ब्रोमो. इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन. ठीक है, ये भी हमारा एक अल्काइल हैलाइड है. ओके, तो ये हमारा फर्स्ट हुआ इसका, दैट इज फ्रॉम एल्कीन में फर्स्ट है, दैट इज एडिशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन्स. नेक्स्ट जो अगला जो आएगा हमारा एडिशन ऑफ क्या आएगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स. ठीक है,
ओके, कंप्लीट, रब कर देते हैं। ओके, सो ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए नंबर 2 में, दैट इज इसी एल्कीन में ही है। पहला हो गया सिमेट्रिकल का, अब हम लोग अनसिमेट्रिकल में आते हैं। ठीक है, अनसिमेट्रिकल में दैट इज बी पार्ट, वो ए का था फर्स्ट वन। तो एडिशन ऑफ, हम यहाँ लिखेंगे एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स यहाँ अब आ गया अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल था, अभी आ गया अनसिमेट्रिकल, मतलब डबल बॉन्ड के दोनों साइड जो कार्बन होगा वो इक्वल नहीं होगा, अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, इस केस में क्या होता है, इन दिस केस 2 आइसोमेरिक जो प्रोडक्ट है वो बनता है। सो इन दिस रिएक्शन और इन दिस केस 2 आइसोमेरिक कंपाउंड्स फॉर्म, 2 आइसोमेरिक हमारा कंपाउंड्स बनता है, प्रोड्यूस होता है, विच इज पॉसिबल, है ना, या पॉसिबल लिख दो, पॉसिबल। ठीक है, एक मेजर होगा, दूसरा माइनर होगा। ठीक है, 2 पॉसिबल कंपाउंड होता है आइसोमेरिक का। देखिए अब क्या होता है अनसिमेट्रिकल में। जैसे मान लीजिए अनसिमेट्रिकल हम लोग लेते हैं, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज प्रोपीन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपीन। 1 2 3 दैट इज प्रोपीन है, अनसिमेट्रिकल है। अब इस प्रोपीन को मान लीजिए ये हाइड्रोजन एसिड से रिएक्ट कराते हैं, HBr से मान के चलिए। ठीक है, अब ये क्या होगा रिएक्शन, दैट इज CH3 CH Br यहाँ पे जुड़ेगा, और ये H जो है यहाँ CH2 के साथ जुड़ के CH3 बन जाएगा। ठीक है, ये इस तरह का बनेगा। क्लियर, यहाँ पे HCl लेंगे तो भी यहाँ पे Cl होगा, हो गया। तो ये मेरा मेजर प्रोडक्ट है, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट है ना, तो ये मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो अब माइनर प्रोडक्ट क्या होगा, बोलेंगे सर माइनर कौन सा होगा, तो दैट इज CH3 CH, देखिए ऐसे ही है, CH3 CH2 डाल दीजिए, यहाँ CH2 डाल दीजिए और Br, मतलब हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गया, ये Br एंड में ऐड हो जाता है टर्मिनल में। तो ये हमारा माइनर प्रोडक्ट। तो 2 पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकता है, आइसोमेर है दोनों, और ये बनता है। तो ये मेजर होगा, ये माइनर होगा। तो ये जो लॉ है ये एक्चुअली मार्किनोकॉफ्स का रूल को फॉलो करता है। और यू कैन से एक और देखिए, अगर हम डालते हैं यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड, इस तरह से CH2 CH3, ये भी हमारा क्या है, अनसिमेट्रिकल है। और अगर हम इसको फिर से HBr के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो इस केस में देखिए क्या बनेगा प्रोडक्ट, इसको हम मिटा दे रहे हैं, है ना, ये हो गया है, रब कर दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे इस केस में जब अगर हम बनाते हैं तो यहाँ बनेगा CH3 C CH3, तो Br यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये H इसके साथ जुड़ के CH3 बन जाएगा। तो इस केस में मेरा मेजर प्रोडक्ट हो गया ये, और माइनर प्रोडक्ट होगा, अगर हम माइनर बनाते हैं इसमें 2 पॉसिबल प्रोडक्ट है, CH3 C यहाँ पे H इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ H हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड था, H क्या होगा, इस ऐड टू हियर, इस जगह ऐड होगा। नाउ इट बिकम्स हियर लाइक दिस, दैट इज दिस केस CH3 and CH2 Br. This is minor product. Okay, you clear? आ गया समझ में ये, बोलिए कोई दिक्कत है? Now it's clear, हाँ? Okay, understood?
ठीक है, अब थोड़ा जल्दी फास्ट जाएंगे, स्लो हो जा रहा है, थोड़ा स्पीड हम लोग को लेना होगा। तो ये दो प्रोडक्ट हुआ। ये जो लॉ है एक्चुअली, ये लॉ हमको मार्किनोकॉप्स का रूल को फॉलो करता है। ये जो रिएक्शन है ये हमारा फॉलो करता है अनसिमेट्रिकल में, किसमें? इट फॉलो द मार्किनोकॉप्स रूल, फॉलो मार्किनोकॉप्स, मार्कोनिकोव्स रूल। ये मार्किनोकॉप का रूल्स को फॉलो करता है, ठीक है ना। अब ये रूल क्या है? इस रूल में यही था कि दैट इज हमारा जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव स्पीसीज है ना। यहाँ पे मान लो HCl है तो ये पॉजिटिव है, ये क्या है? नेगेटिव। सो दिस नेगेटिव, सो नेगेटिव स्पीसीज और पार्टिकल attach with that carbon atom of unsymmetrical compound, unsymmetrical alkene, which has the least नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, वहाँ पे ये जुड़ेगा। जैसे हम आपको बताए थे, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH3 CH2 इज CH2 लाइक दिस, और ये HCl था। तो यहाँ लीस्ट कार्बन, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन के पास सबसे कम हाइड्रोजन है, यही रूल में है। तो ये जो अटैच होगा यहाँ पे अटैच होगा, वैसा कार्बन जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ पे है। तो इस रूल में यही है, दैट इज, इसीलिए हमने जो यहाँ पे दिया था आपको Cl और ये CH3 बना था, जो कि हम आपका शुरू में ही दिखाए थे, शुरू में इसके पहले बताए थे। ये Cl एसिड जोड़ रहा है यहाँ पे, Br हो Cl हो जो भी, इस तरह से होगा। क्लियर? जो कि हम आपको यहाँ भी दिखाए थे कि CH3 है, C है, डबल बॉन्ड है, यहाँ CH2 है, CH3 है। तो यहाँ भी अगर हम HBr डालते हैं तो हमको कहाँ जाएगा? इस कार्बन के पास, क्योंकि इस कार्बन में हाइड्रोजन है नहीं, सबसे कम है। तो जब यहाँ पे हमको दिखाना होगा तो यहाँ पे मेरा जुड़ेगा, दैट इज मेरा हो जा रहा है यहाँ पे CBr और CH3 और CH3, ये प्रोडक्ट, ठीक है। तो यही था हमारा मार्किनोकॉप्स का रूल, ठीक है। क्लियर? कोई डाउट है? नो ना? तो इस तरह से ये मार्किनोकॉप्स का रूल यहाँ पे फॉलो करता है इन द केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन में। अब आ जाते हैं कि मैकेनिज्म क्या है इसका, किस तरह से होता है, इसका स्टेप्स क्या है, कैसे ये रिएक्ट कर रहा है, कैसे कंबाइन कर रहा है। ओके, देखते हैं अगला। ना देख रहे हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? ओके, तो नेक्स्ट में देखिए, जो इसको समझ के पढ़ना है, ये नहीं कि इक्वेशन है इसका मतलब नहीं है जो रट लेना है, ये इसके साथ रिएक्शन होगा वो बनेगा। रिएक्शन को समझ के हमको रखना है, तभी वो याद रहेगा, नहीं तो बेमतलब का बिना सेंस का आप रटोगे तो याद नहीं रहेगा। तो अब देखिए इसका मैकेनिज्म अगर हम देखते हैं, इफ सी द मैकेनिज्म ऑफ दिस मार्किनोकॉप्स का, तो व्हाट इट, सपोज आई टेक द अनसिमेट्रिकल कार्बन CH डबल बॉन्ड CH2, ओके। नाउ इफ टेक द HCl, सपोज हम यहाँ मान लीजिए HCl ले रहे हैं, ये स्लाइटली पॉजिटिव है, स्लाइटली नेगेटिव है ना। तो ये क्या होगा, एक तरह से हमको ये अटैक करेगा यहाँ पे इसके साथ यहाँ, ठीक है। तो पहले क्या बनेगा, नाउ इट बिकम्स CH3 CH3, ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, ठीक है। ये एक तरह का कार्बोकेटाइन है, दिस इज
कार्बोकेटाइन, जैसे उसमें था यहाँ भी कार्बोकेटाइन हो गया, ये हमारा स्लो रिएक्शन होगा, ठीक है। और ये क्या बन रहा है, Cl माइनस। नाउ दिस अगेन ऐड, अगेन रिएक्ट और एडिशन होगा, तो दिस पॉजिटिव कार्बोकेटाइन एंड Cl माइनस, ये ऐड होगा। तो ये ऐड होगा, सिंपली कहाँ ऐड होगा, अब बताइए, ये प्लस है ये माइनस है, कहाँ ऐड होगा, ये Cl कहाँ होगा, यहाँ ऐड होगा, यहाँ हो नहीं सकता है, CH3 ऑलरेडी है, यहाँ भी नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब है ये यहाँ ऐड होगा। इट मीन्स दैट सेकेंड स्टेप में आपको यहाँ पे इस तरह से ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये फास्ट होगा। सो ये इन दिस वे ये रिएक्शन फॉलो होता है। तो 2 स्टेप में ये इसका मैकेनिज्म है, ओके ना, क्लियर। तो ओवरऑल ये मैकेनिज्म हुआ मार्किनोकॉफ्स का रूल। तो मार्किनोकॉफ्स का रूल में क्या है, बेसिकली ये रूल है कि वैसा कार्बन जहाँ पे आपको हाइड्रोजन कम है, जिसके पास हाइड्रोजन सबसे कम होगा, जिस कार्बन में, उसी कार्बन के साथ या तो HCl है तो Cl जुड़ेगा, HBr है तो Br जुड़ेगा, नेगेटिव पार्ट जो है यहाँ जुड़ेगा। यही ओवरऑल इस रूल में। नाउ इट्स ओके। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अगला स्टेप जो है ये खत्म हो गया। इस रूल को हम लोग मार्किनोकॉफ्स का रूल बोलते हैं। ये हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में होता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप आएगा इसमें देखते हैं हम लोग क्या है, ठीक है। तो इसमें देखिए थोड़ा सा ये मिटा दें अच्छी तरह से, है ना। अब एक आता है नेक्स्ट जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट, है ना। तो ये एक नया इसमें देखिए पेरोक्साइड, नेक्स्ट जो आएगा पेरोक्साइड इफेक्ट। ये क्या है पेरोक्साइड इफेक्ट, ये बेसिकली हमारा जो होता है ये रिएक्शन HBr के साथ होता है, नॉट HCl और HCl और HI के साथ नहीं होगा, ठीक है। तो HBr एडेड होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे तब HBr एडेड विथ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ऐड होता है HBr। तो डिफरेंस क्या है, अंतर क्या, पहले भी तो था HCl भी हो सकता है यहाँ, लेकिन अंतर है यहाँ पे कि ओनली HBr। यहाँ हमारा नॉट, हमारा HCl भी नहीं होगा, HI भी नहीं होगा, ये याद रखना है। यहाँ पर डिफरेंस ये है, ये HBr होगा, ये नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये अंतर है। अब इसमें एक और चीज़ है कि पेरोक्साइड इफेक्ट है, मतलब क्या है, सुटेबल ऑर्गेनिक पेरोक्साइड यहाँ पे यूज होता है, इन प्रेजेंस ऑफ सुटेबल ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। तो ये जो रिएक्शन होगा, दिस रिएक्शन फॉलो करता है, फॉलोज इन प्रेजेंस ऑफ सुटेबल ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। इसमें सुटेबल एक है सबसे अच्छा बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल इसको बोलते हैं पेरोक्साइड। सो बेंजोइल पेरोक्साइड भी हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पे सुटेबल हमारा ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है। तो इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड ये हमारा जो ये एल्कीन्स है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ये रिएक्ट होगा, ऐड होगा विथ HBr के साथ। देखिए कैसे, मान लीजिए हम ले रहे हैं SCH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा क्या है, अनसिमेट्रिकल है, ठीक है ना। तो ये अनसिमेट्रिकल है, हमको क्या लेना है, HBr लेना है, क्योंकि HBr होगा, HCl नहीं होगा, HI भी नहीं होगा, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड मेरा क्या है, बेंजोइल पेरोक्साइड अगर बोलेंगे तो ये होता है C6H5CO, इधर भी लिख लीजिए आप C6H5, है ना, CO ऐसे लिख देते हैं CO, और यहाँ 2 ऑक्सीजन रहेगा इस तरह से। तो आप इसको ऐसे थोड़ा सा ये कर देना है,
COC6H5, ठीक है। इसको थोड़ा डैश, एक ये आ गया। तो ये हमारा बेंजोइल पेरोक्साइड है, इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। तो इस रिएक्शन में हमारा क्या है, कुछ नहीं है, सिंपली ऐड होगा। नाउ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नाउ बिकम CH3CH2, ये CH2 हो जाएगा, ये हमारा ब्रेक करेगा बॉन्ड। नाउ इट फॉर्म CH2 अगेन और Br लास्ट में एंड में जुड़ जाएगा। बस ये हमारा क्या है, प्रोपाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोप्रोपेन। तो ये हमारा अल्काइल हैलाइड है, दैट इज ब्रोमोप्रोपेन और प्रोपाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड, दैट इज अल्काइल हैलाइड। तो थ्रू दिस अल्काइल हैलाइड कैन ऑल्सो प्रोड्यूस सो बाय द पेरोक्साइड इफेक्ट। सो इसके पहले हम लोग जो पढ़े थे, इसके जो पहले हम पढ़े थे, तो इसमें क्या था, इसके पहले जो हम पढ़े थे उसमें हमारा, उसमें भी था अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, यहाँ भी है अनसिमेट्रिकल एल्कीन, लेकिन उसमें हमारा जो था वो फॉलो कर रहा था क्या, मार्किनोकॉफ्स का रूल। मार्किनोकॉफ्स का रूल फॉलो हो रहा था, एडिशन जो हो रहा था वो एडिशन ऑफ क्या, मार्किनोकॉफ्स का रूल के हिसाब से ऐड हो रहा था। लेकिन नाउ हियर, अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे हमारा पेरोक्साइड का इफेक्ट है, मतलब HBr के साथ ही है, ऐड भी यहाँ भी हो रहा है, लेकिन यहाँ एडिशन मार्किनोकॉफ्स की तरह नहीं है, ये अलग है, सिंपल ऐड हो रहा है। तो इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ओके। तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ये ऐड हो रहा है। ये दोनों में मेन डिफरेंस यहाँ पर। यहाँ लेकिन एक चीज़ याद रखना है, ओनली HBr, आपको HCl और HI के साथ ये रिएक्शन नहीं होता है, ये डिफरेंस हुआ, ठीक है। तो हमने ओवरऑल क्या देखा कि फ्रॉम एल्कीन से हम सिमेट्रिकल कार्बन का देखें, सिमेट्रिकल के साथ कैसे रिएक्शन हुआ। अनसिमेट्रिकल में देखें दो पार्ट, दैट इज मार्किनोकॉफ्स का रूल था और दूसरा पेरोक्साइड का, ये दो पार्ट हो गया अनसिमेट्रिकल में। क्लियर, कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया है ना। तो इस तरह से समझ के पढ़ना है इसको, क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं, कोई चीज़ को बिना समझे अगर पढ़ रहे हैं तो वो याद नहीं रहेगा, ओके। तो इस तरह से आगे, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस जो लॉ है इसका दूसरा नाम भी, दैट इज कॉल्ड एंटी मार्किनोकॉफ्स, और इसको हम लोग दूसरा नाम क्या बोलते हैं, याद है, खार्स इफेक्ट, दैट इज HARASCH, ये इसका दूसरा नाम है। ये इसको भी नाम याद रखना है। ऑर्गेनिक में एक ही रिएक्शन का जो दो तीन नाम होता है, नेमिंग भी ऐसा ही है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका दो तीन नाम होता है। तो आपको कोशिश रखना है कि सभी नाम आपको याद रहे, क्योंकि अगर किस नाम से आएगा, क्या क्वेश्चन रहेगा, तो ये कहना मुश्किल। अगर एक नाम आपको मालूम है, दूसरा नहीं पता है, तो अगर उस नाम से क्वेश्चन आ गया तो फिर आपको पता रहेगा तो भी आप नहीं समझ पाएंगे, ओके ना। तो यू शुड रिमेंबर, यू शुड नो अबाउट द ऑल द नेम्स ऑफ सेम कंपाउंड। सिमिलरली है, यहाँ भी देखिए इसका नाम पेरोक्साइड इफेक्ट या खार्स इफेक्ट भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है एंटी मार्किनोकॉफ्स, एंटी मार्किनोकॉफ्स रूल, ये एंटी मार्किनोकॉफ्स का रूल बोलते हैं इसको, ये दिस वन। तो दोनों हो गया। अब इस ओवर, ये कंप्लीट पिक्चर समझ में आ गया, ठीक है। तो whenever you study, make the pictorial point of view you just keep in mind. So if अगर आप पिक्चर की तरह से समझ के, जहाँ ऐसे ऐसे इसमें हो रहा है, इसके साथ ये रिएक्शन हो रहा है, तो मेक ए पिक्चर इन योर ब्रेन। अगर आप ब्रेन में पिक्चर ड्रॉ करके पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, वो याद रहेगा, है ना, ठीक है। नेक्स्ट में अब आ जाते हैं अगला, ठीक है। ये प्रिपरेशन था, है ना, एक मिनट। अब नेक्स्ट में हम लोग जो पढ़ेंगे, इसका जो अगला रिएक्शन है एंटी मार्किनोकॉफ्स के हो गया, पेरोक्साइड इफेक्ट हो गया।
अब आ जाते हैं, देखो एक आता है, एक और रिएक्शन है, वो भी हमारा फ्रॉम अल्कीन ही है, लेकिन इथीन नहीं होगा, इथीन नहीं होगा। तो क्या है नेक्स्ट में, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट की तरह समझ लीजिए, स्पेशल है, स्पेशल केस है, ठीक है। तो व्हेन एल्कीन्स, बट यहाँ हम लिख दे रहे हैं नॉट इथीन, इथीन नहीं रहेगा, मतलब 2 कार्बन का डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड नहीं होगा, ठीक है। तो व्हेन एल्कीन्स, दूसरा 3 4 जो भी है, प्रोपीन ब्यूटीन ये हो सकता है, आर हीटेड, इसको हम लोग हीट करेंगे 773 में, एट 773 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। इतना टेम्परेचर में हम इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है, आइदर क्लोरीन और ब्रोमीन, तो विथ Cl2 और Br2, ये 2 के साथ ही कंडीशन है। तो व्हेन हीटेड एट टेम्परेचर विथ Cl2 एंड Br2 और Br2 के साथ, तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन एटम है, द हाइड्रोजन एटम, ये जो हाइड्रोजन एटम होगा किसका, तो एलिलिक का, तो ऑफ एलिलिक कार्बन, ऑफ एलिलिक कार्बन, ये जो एलिलिक कार्बन का जो हाइड्रोजन एटम होगा, एलिलिक कार्बन का जो हाइड्रोजन एटम होगा, जो कि ये एलिलिक कार्बन कहाँ होता है, तो विच इज नेक्स्ट टू, कहाँ पे होगा, नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड कार्बन, नेक्स्ट टू डबल बॉन्डेड कार्बन, ये डबल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट में होता है, इसको हम लोग एलिलिक कार्बन बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम एलिलिक हैलोजनेशन भी बोलते हैं। आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये कार्बन है डबल बॉन्ड के नेक्स्ट, मतलब ये कार्बन, तो इसको हम लोग बोलेंगे एलिलिक कार्बन। तो एलिलिक कार्बन में ये रिएक्शन जो होगा सब्स्टिट्यूटेड होगा बाई हैलोजन, दिस कार्बन में इज सब्स्टिट्यूटेड बाई हैलोजन, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ Cl2 दिए, बोले हैं Cl2 और Br2 हो सकता है, तो ये आई रिएक्ट विथ दिस Cl2 एट 773 केल्विन, ठीक है, ये रिएक्शन हो रहा है, मान लीजिए रिएक्शन हो रहा है, तो ये जो बनेगा तो क्या होगा, ये सब्स्टिट्यूट होगा यहाँ पे, दिस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हटके ये Cl2 यहाँ पे Cl आएगा, हैलोजन, तो एलिलिक कार्बन के पास सब्स्टिट्यूट होगा। इट मीन्स दैट प्रोडक्ट क्या हो गया, यहाँ पे हम एक Cl डालेंगे, एलिलिक कार्बन यहाँ पे है, तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, CH2 आ जाएगा, एक हाइड्रोजन हट गया, सब्स्टिट्यूशन है, एक हाइड्रोजन मेरा क्या होगा, वहाँ से हट जाएगा, क्योंकि ये एलिलिक है, ये वाला एलिलिक यहाँ लिखे हैं, देखिए, heated at temperature with Cl2 or Br2, the hydrogen atom of allylic carbon which is next to double bond, ये जो है substituted by halogen, that is Cl और Br, ठीक है। तो यहाँ पे हम Cl दे दिए, ठीक है, यहाँ सब्स्टिट्यूट हो गया, हाइड्रोजन हट गया। अब यहाँ पे देखिए आप CH2 था यहाँ पे, फिर यहाँ पे अब क्या हो जाएगा बोलिए, इस जगह में सिंपल है, जैसा है वैसा डालिए, Cl यहाँ से हाइड्रोजन हट गया, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, बाकी सब एज इट इज़ जो है वैसे रहेगा। अब यहाँ से एक H क्या हो गया मेरा निकला, एक H और एक Cl बचा हुआ है, द प्रोडक्ट इज HCl, तो ये हमारा प्रोडक्ट बना, ठीक है, तो क्लियर। तो इसमें क्या हुआ, एलिलिक कार्बन जो है, एलिलिक, ये एलिलिक कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो सब्स्टिट्यूटेड बाई हैलोजन, हैलोजन एटम, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हट के हैलोजन जुड़ जा रहा है, ओके। सो दिस इज सब्स्टिट्यूटेड बाई हैलोजन एटम, ओके।
सो दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन जो ये जो हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एलिलिक हैलोजेनेशन। दैट्स वाई, क्योंकि एलिलिक कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूशन है, सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एलिलिक। ठीक है, एलिलिक हैलोजेनेशन। हो गया? तो क्लियर, अंडरस्टूड ना, समझ में आ गया? ओके, ठीक है ना, ये तो समझ में आ गया, क्लियर है ना? एनी डाउट? कुछ है, कुछ पूछना है? नो ना? तो ये जो रिएक्शन है इस तरह से हमको ध्यान देना है कि एक ही है, यहाँ भी अनसिमेट्रिकल है, इसके पहले भी अनसिमेट्रिकल था, अनसिमेट्रिकल में भी अलग अलग कंडीशन में रिएक्शन अलग अलग हो रहा है, नाम भी उसका डिफरेंट नेम से आ रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो हमको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि एलिलिक में हमको 2-3 रिएक्शन आ गया, तो ये ध्यान रखना है कि अनसिमेट्रिकल कार्बन में जो 2-3 तरह का जो रिएक्शन है, जैसे पेरोक्साइड इफेक्ट, मार्किनोकॉफ्स का रूल, और यहाँ पे आ गया एलिलिक हैलोजन। ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल कार्बन में हमको 2-3 रिएक्शन अभी हम लोग डिस्कस कर लिए, दैट इज मार्किनोकॉफ्स, एक सिंपल था, एक मार्किनोकॉफ्स का था, और एक आ गया एलिलिक, एक था हमारा पेरोक्साइड इफेक्ट, और ये आ गया एलिलिक हैलोजेनेशन। तो इस तरह से समझ के कहाँ क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में क्या रिएक्शन हो रहा है, उसका नाम क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। नाउ इट्स कंप्लीट, है ना, दिस वन, मतलब अनसिमेट्रिकल का ये कंप्लीट हो गया। अगला जो रिएक्शन होगा हमारा नेक्स्ट में अल्कोहल के साथ आएगा। ये हमारा फ्रॉम अल्कीन हो गया। तो अल्कीन का थोड़ा ब्रॉडर पार्ट था, थोड़ा लंबा था, लेंदी था। इसके पहले हम लोग पढ़े थे अल्केन का, अल्केन छोटा था, अल्कीन का हमारा लेंदी था। अब हमारा नेक्स्ट जो होगा हमारा अल्कोहल का रहेगा, अल्कोहल का रहेगा। तो अल्कोहल में देखिए क्या है, नेक्स्ट जो हम अगला जो बताएंगे आप लोगों को आज थोड़ा सा बता दे रहे हैं। तो अल्कोहल का जो रहता है फ्रॉम अल्कोहल हम लोग जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रॉम अल्कोहल, ये भी हमारा बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड ही रहेगा, बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड, बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड, दैट इज HX। ये हैलोजन एसिड है। इसमें हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे लुकास रिएजेंट का, लुकास रिएजेंट। ये लुकास रिएजेंट के साथ जो है रिएक्शन होता है, दैट इज लुकास रिएजेंट क्या होता है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ ZnCl2 एंड HCl, ये दोनों का मिक्सचर होता है लुकास रिएजेंट। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका देखेंगे फ्रॉम अल्कोहल से कैसे हमारा बनता है। ओके नाउ, ओके देन सी यू नेक्स्ट क्लास वी, बाय। ओके, हैप्पी दिवाली टू ऑल। ओके।